आदाब। केवी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। बीदर इंचार्ज मिनिस्टर ने बीदर के ब्रिम्स अस्पताल का किया दौरा। बेमलखेड़ा घटना में घायल लोगों से की मुलाकात। विधायक बंडप्पा काशिमपुर ने ब्रिम्स अस्पताल का दौरा कर घायल महिलाओं का हालचाल जाना। गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में नांदेड़ से निकली पद यात्रा आज बीदर पहुंची। कर्नाटक तरण चूक के लिए किसानों की संपत्तियों को जब्त करने के खिलाफ कानून लाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस कर्नाटक प्रमुख को ईडी का नया समन। फसल परिवर्तन से कलबुर्गी के तूर का कटोरा प्याज प्रभावित हो सकता है। सफेद झूठ गुजरात डील के अरविंद केजरीवाल के दावे को बीजेपी ने किया खारिज। देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। बेमलखेड़ा सड़क दुर्घटना में घायल हुई महिलाओं को देखने के लिए बीदर इंचार्ज मिनिस्टर शंकर बी पाटिल मोनेनकोप्पा ने बीदर ब्रिम्स अस्पताल का दौरा किया और इन घायलों से बात की और इस दुर्घटना के बारे में जानकारी ली। घायलों का बेहतर इलाज करने के लिए डॉक्टरों को आदेश दिए। इस संबंध में मीडिया से बात करते हुए इंचार्ज मिनिस्टर ने कहा कि इस घटना में मारे गए लोगों के परिवार को हर परिवार को 5-5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा और घायलों को सरकार की ओर से बेहतर इलाज की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा भी मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में बीजेपी की सरकार बनेगी। इस अवसर पर डॉक्टर शैलेंद्र बिलदाड़े, बूढ़ा चेयरमैन बाबूवाली, जिला अधिकारी गोविंद रेड्डी, बीदर एसपी डक्का किशोर बाबू, ब्रिम्स डायरेक्टर शिव कुमार शेटकार, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसर रतिकांत स्वामी के अलावा ब्रिम्स अस्पताल के सभी स्टाफ और डॉक्टर्स उपस्थित थे। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष की रिपोर्ट। ಬೇರೆ ಕಡೆ ದುಡಿಯಕ್ಕಾಗಿ ಏನೋ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನ ಹೊಲಿಸಿ ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೇನೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಯಾವ್ದಾರ ಅನೇಕ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಇಲಾಖೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಸಚಿವನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾಳೆ ನಾನು ಕೆಡಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಒಂದು 15 ಎಕರೆ ಜಾಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೀದರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಸುಮಾರು ಒಂದು 5,000 ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜವಳಿ ಪಾರ್ಕನ್ನ ಈ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಾನೇ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸರ್, ಈ ಗಾಯಾಳುಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬರ್ತದೆ ಸರ್, ಏನ್ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ? ಯಾರು ಗಾಯಾಳುಗಳಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲು ಅವ್ರಿಗೆ ಬದುಕಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಸಾವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯಾರು ಗಾಯಾಳುಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್, ಟ್ರಕ್ ಮಾಲೀಕ ಮೇಲೆ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರು ಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರೇ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನಿನ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಷ ನಿಷ್ಠರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭ ನಾನು ಚೆಕ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ನಾಳೆ ಇರ್ತೇನೆ. ನಾನು ನಿಗಮ ಮಂಡಲದ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಮಾನ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮದೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರು ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ತ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ತಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದವರಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರ ಅಂತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಪಕ್ಷ ನಿಷ್ಠೆ ನೋಡ್ರಿ, ಪಕ್ಷದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟಿ ಮತ್ತು ಗಸ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರನ್ನ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈರಣ್ಣ ಕಡಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ಧಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಾವು ಗುರುತಿಸಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ತಮ್ಮ ಬಹಳ ಹಿಂದುಳಿದ ಜನಾಂಗವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ದೇಶದ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ
ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಅದನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸ್ತಾರೆ. ಸರ್ ಈಗ ಸಚಿವರು ಬಹಳ ಸರ್ ಬೀದರ್ನ ಬಹಳ ದೂರ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅನ್ನುವಂತ ಆರೋಪ ರೈತರೆಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಘಟನೆಗಳಾದಾಗ BSSK ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ, ಮಳೆ ಬಂದಾಗ, ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಾಗ, ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು 2 ಜಿಲ್ಲೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ 2 ಇಲಾಖೆನ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ 2 ಸಾರಿನೂ. ಅದು ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಣಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಇಬ್ಬರ ಕಡೆ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಬೀದರ್ ರಾಯಚೂರು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲ 2 ಜಿಲ್ಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ಉಸ್ತುವಾರಿ, ಇಲ್ಲೂ ಒಂದ್ಸರಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ರೈತರಿಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಅಲ್ಲ ಅದು. ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬೆಳೆ ಆದ ಒಂದೇ ಸರಿ ಬಂದ್ರು ಹೋದ್ರು ಅಂತ. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಬರ್ತಿದೆ ಈಗ, ಬೀದರ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸಿಗ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರ ಇಂಡೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಗೊಬ್ಬರ ಬೀಜವನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತೇನೆ. ನಾಳೆ KDP ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದ್ರೆ ಸರಿಪಡಿಸ್ಬೇಕು. 3-4 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೋ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ಸರಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇನೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿತ್ತು, ನನ್ನ ಸೋದರ ನಾನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸರಿಯಾದಲ್ಲ. ನಾನು 2 ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನನ್ನ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ್ದು ನನ್ನಿಂದ ಯಾವ್ದಾರ ತಾವು ಹುಡುಕಿ ಕೊಟ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾನು ಸಮಸ್ಯೆ ಅದಲ್ಲ ಸರ್. ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದು ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆ. ಈಗ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಬಂದು 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸರ್. ಮೊನ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ಎಷ್ಟೋ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಾವಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವಾಗಾರ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ತಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್. ಈಗ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ತು, ಯಾವ್ದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಆದಾಗ ಬಂದಾಗ ಪರಿಹಾರ ABC ಮಾದರಿಲಿ ಚೆಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಪೂರ್ಣ ಬಿದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೆಗೆ 5 ಲಕ್ಷ 3 ಲಕ್ಷ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ರೈತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ದಾರ ಅದನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ದಾರ ಊರಲ್ಲಿ, ಯಾವ್ದಾರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾವ್ದಾರ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾವ್ದಾರ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ ನಮ್ಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಸರಿಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಈ ಸರ್ಕಾರ ತಯಾರಿ. बीदर के ब्रिम्स अस्पताल के बाहर कर्मचारी पिछले 182 दिनों से अपनी मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि ब्रिम्स अस्पताल में काम करने वाले 250 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है। उनको काम पर वापस लेने की मांग करते हुए ये लोग 9 मई 2022 से पूरे 182 दिनों से धरने पर बैठे हैं। आज केपी न्यूज से बात करते हुए दलित रक्षणा वेदिके के जिला अध्यक्ष अंबादास गायकवाड़ ने इस संबंध में बताया। उन्होंने कहा कि बीदर के इंचार्ज मिनिस्टर शंकर वी पाटिल ने यहां पहुंचकर उनसे बात की। इस अवसर पर इन लोगों ने इंचार्ज मिनिस्टर को एक मेमोरेंडम दिया। इसके बाद इंचार्ज मिनिस्टर ने उन्हें ये आश्वासन दिया है कि वो इन लोगों की मांग जल्द से जल्द पूरी करेंगे। इस अवसर पर डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़े, बूढ़ा चेयरमैन बाबू वाली, जिला अधिकारी गोविंद रेड्डी, बीदर SP रेखा किशोर बाबू, ब्रिम्स डायरेक्टर शिव कुमार चिटकार और दूसरे उपस्थित रहे। एपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष की रिपोर्ट। ब्रिम्स हॉस्पिटल के सामने 9/5/2022 से आज क्या है 6 तारीख है सर, 6 नवंबर है। आज को 182 दिन हो गए। रात दिन ये पूरे महिलाओं को लेकर रात दिन यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। धरने पे बैठने का मुख्य मुद्दा ये है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पहले 60-70 लोग काम करते थे। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जब ब्रिम्स टीचिंग हॉस्पिटल होने के बाद 750 बेड का हॉस्पिटल हुआ सर। 750 बेड के हॉस्पिटल को तकरीबन 150 से 200 लोग होना, लेकिन ऐसे लोगों को काम से निकाल दिया। तो इसलिए हम सरकार से निवेदन करने के लिए, सरकार के ऊपर दबाव डालने के लिए, फिर ये लोगों को फिर से काम को लेना बोल के आज हम लोग यहाँ पर धरने पे है। आज को 182 दिन हो गया, 6 महीने हो गया। रात दिन एक महीना दुबकाला चलेगा, 4 महीने बारिश चलेगी, फिर अब 1 महीना ठंडकाला भी जा रहा है। आज हमारे टेंट को आज हमारे बीदर जिले के इंचार्ज मिनिस्टर शंकर पाटिल साहब आए और अच्छा आश्वासन दे के गए। शायद हम आशा रख रहे हैं कल हमारा आश्वासन क्या दिए है कि जो भी मैं डायरेक्शन देने वाला हूँ, डायरेक्टर को डायरेक्शन दूंगा, फिर कल हमारा काम होने की आशा हम रख रहे हैं। कल KDP मीटिंग भी है और हमारे आप सभी मीडिया के सामने उन्होंने कहा कि मैं डायरेक्टर को और DC साहब को जो इंस्ट्रक्शन देना है मैं देता हूं बोल के चले गए हैं। हम हमारे संगठन की ओर से और पूरे कार्मिक लेबर की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।
विमलखेड़ा के पास एक दुर्घटना में मारे गए उदमनल्ली की महिला मजदूरों के घरों का दौरा करने और शोक व्यक्त करने और व्यक्तिगत धन की पेशकश करने के बाद विधायक गुंडप्पा खाशिमपुर ने बिदर शहर के ब्रिम्स अस्पताल और एक महिला मजदूर मीनाक्षी जो घायल हो गई थी का दौरा किया। उन्होंने जयशीला, गोदावरी, शकुंतला, शुभम्मा, पार्वती, सरस्वती, मराठम्मा से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ की और उन्हें बहादुर होने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने घायलों के परिवारों को व्यक्तिगत धन देने और सरकार की ओर से मुफ्त इलाज देने का वादा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि घायलों का बेहतर इलाज किया जाना चाहिए। घायलों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि घायलों को कम से कम 3 से 4 महीने तक आराम करना पड़ता है। विधायक गुंडप्पा खाशिमपुर ने कहा, मैं सरकार से विमलखेड़ा दुर्घटना मामले को गंभीरता से लेने और घायलों को अच्छे इलाज के साथ आर्थिक सहायता प्रदान करने का आग्रह करता हूं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। गुरु नानक देव जी की जयंती के उपलक्ष्य में महाराष्ट्र के नांदेड़ से 2 तारीख को जत्था बिदर के लिए निकला था, जो आज रविवार को गुरु नानक झीराव बिदर पहुंचा, जिसका स्वागत डॉक्टर प्रमोद छतरी और बीरू सिंह ने किया। इस अवसर पर जत्था का भव्य स्वागत किया गया। गुरु नानक जयंती 8 नवंबर को होना है। संवाददाता शान अली और कैमरामैन संतोष का कवरेज। जयंती के अवसर पर हजूर साहब नांदेड़ से सिकलीगर समाज एक जत्था, बलबीर सिंह बाला साहब, बलजीत सिंह बावरी एक सर्विसमैन नांदेड़, इनका एक जत्था पहली बार सबसे फर्स्ट 6 तारीख यानी कि 6 नवंबर आज बिदर पहुंच गया है। 2 तारीख को ये लोग जो है नांदेड़ से निकले थे और 6 तारीख के दिन यहाँ पे पाद यात्रा करते हुए बिदर पहुंच गए। हम उनके बहुत आभारी हैं। इन्होंने हमको जैसी सूचना मिली, हम प्रमोद मास्टर चिदरी, डॉक्टर चिदरी, हम वहाँ पे भालकी से आगे तकरीबन 60 किलोमीटर के दूर इनका जत्था को मालवा करके गांव है, भालकी से क्रॉस से पहले बार जहाँ पे महात्मा गांधी फैक्ट्री है, हमारे ईश्वर सिंह शासक और माजी सचिव भालकी ईश्वर सिंह केपीसी उपाध्यक्ष, उन्हीं के पास में ईश्वर खंडरे के पास में इन्होंने एक मुकाम किया। वहाँ से सवेरे चलते हुए फिर हम जो है नौबाद से लेके डॉक्टर प्रमोद चिदरी, महेंद्र सिंह बीदर, हमारे भतीजे, हमारे बेटे, हम सारे बीदर के परिवार के लोग इनको वेलकम करने के लिए वहाँ पे गए। अभी ये नानक झीरा पहुंचेंगे और 553वीं जयंती परसों मनाएंगे। ऐसे कहते हुए मीडिया वाले के हम बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमने फोन करते आ गए। आगे के शब्द डॉक्टर प्रमोद चिदरी कहेंगे, उसके बाद में जो है जत्था हैसरवानी होगा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मान्यवर बलबीर सिंह के भी बहुत उभारी हैं, वो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने अभी कर्नाटक राज्य परिषद का भी उन्होंने प्रेस वहाँ पे पाया है, हम उनके भी बहुत शुक्रगुजार हैं। बलबीर सिंह बीदर गुरु नानक झीरा प्रबंध कमेटी प्रेसिडेंट ऑफ बीदर। 17 नौजवानों का जत्था पहली पातशाही गुरु नानक देव जी महाराज जी का ਜਿਹੜਾ 8 तारीख ਨੂੰ जन्म दिहाड़ा मना रहे हैं और जन्म दिहाड़े के लिए ही बिदर के लिए रवाना होया सी साध संगत जी। तो आज सच्चे पातशाह ने बड़ी कृपा की है। सच्चे पातशाह जी ने 6 तारीख ਨੂੰ सारा ही जत्था नाम सिमरन दे नाल राजी खुशी दे नाल आज इत्थे गुरु महाराज दे दरबार दे सामने खड़े हो गया है। गुरु महाराज की बड़ी कृपा हुई जत्थे दे साध संगत जी। कर्नाटक के प्रसिद्ध कांग्रेस नेता जमीर अहमद खान के युवा पुत्र जायद खान की पहली कन्नड़ फिल्म बनारस पिछले दिनों रिलीज हो चुकी है। युवा अभिनेता जायद खान और सोनल मोंटेरियो के शानदार अभिनय से सजी ये ड्रामा थ्रिलर लव स्टोरी बनारस को लोग काफी पसंद कर रहे हैं और जायद खान के अभिनय की प्रशंसा कर रहे हैं। फिल्म बनारस शानदार बिजनेस कर रही है। जायद खान अपनी पहली फिल्म से ही एक सफल अभिनेता के तौर पर उभरे हैं। दर्शक उनके अभिनय की तारीफ कर रहे हैं। ಅವ್ರ ಮನೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಂದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್, ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಹೆಂಗ್ ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಮನೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಹಂಗೆ ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ। ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಇವತ್ತು ನೀವು ಮೂವಿ ನೋಡಿ? ಅಣ್ಣನ ಅಭಿಮಾನ ಲೆಕ್ಕನೇ ಇಲ್ಲ, ಹೆಂಗ್ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಅಣ್ಣನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಇದೆಯಾ? ಲೆಕ್ಕನೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ತರ ಅಣ್ಣನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ನೀಟಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೂ ನಿಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಬೆಲ್ಬಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಂತ ಸಕ್ಸಸ್ ಕೊಡ್ತು ಅಂತ, ಇದೂ ಒಳ್ಳೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ। अब समाचार राज्य के अन्य जिलों के। राज्य सरकार जल्द ही ये कानून लाएगी जो बैंकों को कृषि उद्देश्यों के लिए उधार लिए गए ऋणों का भुगतान न करने की स्थिति में किसानों की संपत्तियों की नीलामी या जब्त से प्रतिबंधित करेगा। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शनिवार को केंद्रीय कृषि मंत्रालय और किसान कल्याण विभाग के सहयोग से यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज बेंगलुरु द्वारा आयोजित कृषि मेला 2022 के समापन के दौरान ये घोषणा की है।
मुंबई ने कहा, मैंने पहले ही सहकारी बैंकों और विभाग के अधिकारियों को किसानों की संपत्तियों की नीलामी या जब्ती नहीं करने का निर्देश दिया है। इसके बजाय उन्हें तुरंत चुकाने के लिए समय बढ़ाना चाहिए। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस कर्नाटक के अध्यक्ष डीके शिवकुमार और उनके सांसद भाई डीके सुरेश को 7 नवंबर को जांच अधिकारी के सामने पेश होने के लिए तलब किया है। नेशनल हेराल्ड एंड यंग इंडिया मामले के जांच अधिकारी अब बदल गए हैं। मुझे और मेरे भाई को कल से एक दिन पहले 7 नवंबर को कुछ दस्तावेजों के साथ पेश होने के लिए समन मिला था। उन्होंने कहा कि हालांकि उन्होंने कुछ दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, ईडी ने कुछ और मांगे हैं जिन्हें वे जांच अधिकारी के समक्ष पेश करेंगे। उनके मुताबिक ईडी और सीबीआई ने उनके खिलाफ अलग अलग मामले दर्ज किए हैं। ईडी और सीबीआई ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। ईडी और सीबीआई ने मेरे खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में मामला दर्ज किया है। मैंने ये कहते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है कि ऐसा नहीं किया जा सकता। हमें देखना होगा कि कानून क्या कहता है। कर्नाटक के अरहर के कटोरे के रूप में कलबुर्गी जिले का टैग अस्थिर हो सकता है, क्योंकि किसान अन्य व्यावसायिक फसलों की ओर रुख कर रहे हैं। लाल चने उगाने वाले क्षेत्र पर धीरे धीरे बीटी, कपास, सोयाबीन और अन्य फसलों का कब्जा हो रहा है। क्रॉप स्विच अरहर दाल को प्रभावित कर सकता है, जिसे इसकी बेहतर गुणवत्ता के लिए भौगोलिक संकेत टैग मिला है। कृषि विभाग के अनुमान के अनुसार पिछले 4 साल में औसतन 6 लाख हेक्टेयर के मुकाबले अरहर की दाल की खेती का रकबा घटकर 4.70 लाख हेक्टेयर रह गया है। इस क्षेत्र में कपास और सोयाबीन का कब्जा है, जिसमें क्रमशः 64,000 हेक्टेयर और 31,000 हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। गन्ने के रकबे में भी 11,000 हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। कलबुर्गी जिले की कृषि भूमि कैल्शियम और पोटाशियम से भरपूर है, इसलिए ये अरहर की दाल को एक अनूठा स्वाद और उच्च पोषण मूल्य देता है। पिछले 1.5 दशक के दौरान अरहर की दाल की खेती में लगातार वृद्धि हुई है। 2 दशक पहले लगभग 2 लाख हेक्टेयर से 2018 में 6 लाख हेक्टेयर तक, और किसानों ने इसका लाभ उठाया है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर। इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9888403334। बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है
कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है। जी हां दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड एंड द प्राइसेस आर नार्मल, इट इज नॉट हाई एंड ऑल। ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. साथ ही यहाँ पर बीदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, पुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल, 1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है। और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं, जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सभी रीज़नेबल है यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए, वाइब होटल्स, जहां आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहां के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए, बीदर ज़िले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बीदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल GM 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है। अभी ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और एक है हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। सो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस, रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com। चलिए देखते हैं देश और विदेश के समाचार। आप पार्टी प्रमुख और दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर आरोप लगा चुके हैं कि अगर उनकी पार्टी गुजरात चुनाव से हटती है तो बीजेपी ने जांच में उलझे मंत्रियों मनीष सिसोदिया को छोड़ने की पेशकश की है। बीजेपी ने आज अरविंद केजरीवाल के इन्हीं आरोपों को बिल्कुल खारिज कर दिया। बीजेपी प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने इसे झूठ करार देते हुए कहा कि ये लोगों को गुमराह करने और भाजपा की छवि खराब करने वाला बयान है। उन्होंने कहा केजरीवाल ने देश के लोगों को गुमराह किया है। उन्होंने सत्ता में आने के लिए अन्ना हजारे का इस्तेमाल किया और बाद में उन्हें छोड़ दिया। वो सत्ता हथियाने के लिए किसी को भी गुमराह कर सकते हैं। केजरीवाल ने मीडिया से बात करते हुए दावा किया था कि सिसोदिया द्वारा आप छोड़कर दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के उनके प्रस्ताव को खारिज करने के बाद बीजेपी ने उनसे संपर्क किया था। उनके दावे के अनुसार बीजेपी ने कहा, अगर आप गुजरात छोड़कर वहां चुनाव नहीं लड़ते हैं तो हम सत्येंद्र जैन और सिसोदिया दोनों को छोड़ देंगे और उनके खिलाफ सभी आरोप हटा देंगे। हिमाचल विधानसभा चुनाव में वोटिंग से पहले सारे दल पूरी ताकत झोंके हुए हैं। जहां शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल में 2 रैलियां की हैं, वहीं कांग्रेस भी कोई कसर नहीं छोड़ रही। कांग्रेस के चुनाव प्रभारी भूपेश बघेल भी पिछले 4 दिनों से शिमला में कैंप कर रहे हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो और हिमाचल को लेकर छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल से मीडिया कर्मी ने बात की। छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल ने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार आने पर हम 1 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, राज्य में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करेंगे। ये काम हमने छत्तीसगढ़ में किया है और हिमाचल में भी करके दिखाएंगे। OPS के लिए NPS का पैसा केंद्र से मांगेंगे। बघेल ने कहा कि बीजेपी को यहां प्रधानमंत्री की जरूरत पड़ रही है। इससे साफ पता चलता है कि राज्य में राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा में हैं, पर प्रियंका जी प्रचार कर रही हैं। बघेल ने कहा कि हिमाचल में बीजेपी बागियों से लड़ रही है।
दिल्ली की एक अदालत ने एक महिला को धमकी देने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले अंग्रेजी अपशब्द का इस्तेमाल करने के लिए एक पुरुष पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने के मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को बरकरार रखा है। अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता द्वारा शिकायतकर्ता का अपमान करने के इरादे से शब्द का इस्तेमाल करने का प्रथम दृष्टया मामला था। अदालत याचिकाकर्ता द्वारा दायर एक आपराधिक पुनरीक्षण मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसके खिलाफ अगस्त 2022 में एक महिला अदालत ने धारा 354A 509 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजय शर्मा ने हाल ही के एक आदेश में कहा कि शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपी ने 9 मई 2019 को अब अपशब्द का इस्तेमाल किया और उसे धमकी दी। इस अदालत को आरोप तय करने के आदेश में कोई भौतिक अवैधता, अनियमितता या क्षेत्राधिकार त्रुटि नहीं मिली। उसी अनुसार याचिकाकर्ता द्वारा दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका खारिज की जाती है। अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता ने विशेष रूप से आरोप लगाया था कि आरोपी ने हिंदी में अपमानजनक वाक्यांश का इस्तेमाल करने के अलावा अपशब्दों का इस्तेमाल किया। महाराष्ट्र की राजनीति में नया विवाद जन्म लेता दिख रहा है। अब पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के करीबी चंद्रकांत खैरे ने कांग्रेस विधायकों में फूट का दावा कर दिया है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आने के बाद उन्होंने बयान को वापस ले लिया है। खैरे का कहना था कि कांग्रेस के 22 विधायक उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ जाने के लिए तैयार हैं। शुक्रवार को औरंगाबाद में रैली के दौरान खैरे ने कहा था कि न्यायपालिका ने 16 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया था, तो फडणवीस ने सरकार को बनाए रखना सुनिश्चित करने के लिए 22 कांग्रेस विधायकों को तैयार रखा है। उन्होंने कहा था, अगर शिंदे गुट के विधायक अयोग्य घोषित होते हैं तो दल बदल कानून के प्रावधानों के आधार पर सरकार का गिरना तय है। इससे बचने के लिए फडणवीस ने 22 कांग्रेस विधायकों को तैयार रखा है ताकि सरकार चलती रहे। तंजानिया में रविवार को एक बड़ा हादसा हुआ है। प्रेसिजन एयर का एक यात्री विमान तंजानिया के विक्टोरिया झील में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ने रविवार को बताया कि विमान के बुकोवा में एक एयरपोर्ट पर लैंड करने का प्रयास करते समय विमान विक्टोरिया झील में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। हादसे को लेकर अभी तक पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। विमान में कितने लोग सवार थे और उनकी क्या स्थिति है, इस बारे में जानकारी अभी तक आना बाकी है। टीबीसी ने कहा कि अब तक 15 लोगों को बचाया गया है, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है कि कितने लोगों की मौत हुई है। प्लेन में कितने लोग सवार थे। टीबीसी ने बताया कि विमान राजधानी दार एस सलाम से रवाना हुआ था और आज सुबह तूफान और भारी बारिश के कारण लैंडिंग के समय विक्टोरिया झील में जा गिरा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस के प्रस्ताव पर मतदान हुआ, जिसमें भारत ने रूस के समर्थन में वोटिंग की। महासभा में रूस का मसौदा नाजीवाद के महिमा मंडन का मुकाबला रिकॉर्ड वोटिंग के बाद बहुमत से पास हुआ और समिति ने मसौदे को औपचारिक मंजूरी दे दी है। मसौदे के समर्थन में 105 ने पक्ष में, 52 ने विपक्ष में वोट दिया, जबकि 15 सदस्यों ने मतदान से परहेज किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में समिति ने कुल 8 मसौदों को हरी झंडी दिखाई। रूस की ओर से लगाए गए मसौदे में स्वदेशी लोगों के अधिकारों, डिजिटल युग में गोपनीयता, नाजीवाद के महिमा मंडन की निंदा शामिल है। इस मौके पर भारतीय प्रतिनिधि ने कहा कि ये समझ के साथ संकल्प पर आम सहमति से जुड़ता है, क्योंकि स्वदेशी लोगों की अवधारणा देश के संदर्भ में लागू नहीं है। एक नजर फिल्मों के समाचार पर। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के घर गूंजी किलकारी। एक्ट्रेस ने बेटी को दिया जन्म, फैंस बोले लक्ष्मी आई है। अब समाचार खेल जगत के। बांग्लादेश T20। बांग्लादेश को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा पाकिस्तान। भारत के मैच पर टिकी अब भी नजर। आखिर में देखते हैं समाचार बाजार के। पेट्रोल डीजल पर रविवार को फिर मिली राहत। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। बीदर इंचार्ज मिनिस्टर ने बीदर के ब्रिम्स अस्पताल का किया दौरा। बेमलखेड़ा घटना में घायल लोगों से की मुलाकात। विधायक बंडप्पा काशिमपुर ने ब्रिम्स अस्पताल का दौरा कर घायल महिलाओं का हालचाल जाना। गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में नांदेड़ से निकली पद यात्रा आज बीदर पहुंची। कर्नाटक तरण चूक के लिए किसानों की संपत्तियों को जब्त करने के खिलाफ कानून लाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस कर्नाटक प्रमुख को ईडी का नया समन। फसल परिवर्तन से कलबुर्गी के तूर का कटोरा त्याग प्रभावित हो सकता है। सफेद झूठ गुजरात डील के अरविंद केजरीवाल के दावे को बीजेपी ने किया खारिज।
केपी न्यूज़ के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। केपी न्यूज़ 24/7 सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। सभी लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।